त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मृक्षीयमामृता। ओम देवोना देव महादेव। तो चालो देवोना देव महादेवना आ पवित्र मासमां आपणे भवनाथ जूनागढ़ना मंदिरमां दिव्य दर्शन અને આરતીનો મહિમા કરી। नमस्कार मित्रों, हूँ कृपालाल धर्मशक्ति चैनल में आप सौનું स्वागत है। आज આપણે जूनागढ़ में आवेला जगविख्यात एवा भवनाथ महादेव मंदिरना दर्शन करीशुं અને आ मंदिरना इतिहास विषे बात करीशुं। जूनागढ़ शहेरथी आश्रे 7 किलोमीटर दूर अंतरे भवनाथ महादेवनुं आ मंदिर आवेलुं छे। गिरनारनी पर्वतमाळानी तळेटीमां आ मंदिर आवेलुं छे। आ मंदिर ए हिंदू तेमज जैन धर्मना अनुयायीओ माटे यात्रानुं एक पवित्र स्थळ मानवामां आवे छे। ध्यान मग्न शिवजी ने वर्षों वीती जता माँ पार्वती कैलाश पर एकला पड़ी गई, जेथी तेमने शिवजी ने शोधवा माटे नारदजी ने मोकल्या। नारदजीए परत आवी अने शिवजी गिरनार में होवानुं जणाववाथी माँ पार्वती पण અહીં આવ્યા અને એમને તપ કર્યું। ત્યારે શિવજીનું પ્રાગટ્ય થયું અને માનું અને શિવજીનું મિલન થયું। सामान्य रीते शिव मंदिरों में गौमुखी जमणी बाजु होय छे, ज्यारे आ मंदिर में गौमुखी डाबी तरफ आवेली छे। અને જ્યારે શિવલિંગ અહીં સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલું છે। શિવલિંગના ફરતે ગોળ થાળું હોય છે, જ્યારે આ મંદિરમાં ચોરસ થાળું જોવા મળે છે। ભવનાથના આ મંદિરમાં શિવલિંગને જ્યારે શણગાર વગર ધ્યાનથી જોવામાં આવે ત્યારે અહીં ઓમની પ્રતિકૃતિ પણ જોવા મળે છે। અહીં બે શિવલિંગ છે। નાનું શિવલિંગ એ સ્વયંભૂ પ્રગટ છે, જ્યારે મોટું શિવલિંગ એ અશ્વસ્થામાએ સ્થાપિત કરેલું છે એવું માનવામાં આવે છે। द्रोणाचार्यना पुत्र अश्वस्थामाए आश्रे 5000 वर्ष पूर्वे आ शिवलिंगनी स्थापना करी होवानुं मानवामां आवे छे। तेथी कही शकाय कि आ जग्या पर 5000 वर्ष पुराणी छे। भवनाथ मंदिरना आ मंदिर पर
સાધુ સમાજ વર્ષમાં એક વખત માથું નમાવવા માટે જરૂર આવે છે. તેથી જ તો એને હિન્દુ તેમજ જૈન ધર્મના એક યાત્રા સ્થળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એભાભાઈ પુંજાભાઈ કટારા આ વિસ્તારના કોર્પોરેટર છું. વોર્ડ નંબર 9 ભવનાથ વિસ્તાર, અને મારે ત્રીજી ટર્મ આ વિસ્તારમાં કોર્પોરેટર તરીકે છે. યાત્રી સમિતિનું ચેરમેન છું. અને મારા મોટાભાઈ કરમણભાઈ કટારા ડેપ્યુટી મેયર, એ અહીંયા આ વોર્ડમાં 4 ટર્મ ચૂંટાણા. એમ અમે 30-35 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં ચૂંટાઈ છીએ. 30-35 વર્ષથી ભવનાથ દાદાના મંદિરના આશીર્વાદ, ભવનાથ દાદાના આશીર્વાદથી ચૂંટાતા આવી છીએ. ખૂબ જ ભવનાથ દાદાની કૃપા, ખૂબ જ ભવનાથ દાદાના આશીર્વાદ છે કે ભવનો નાથ ભવ આખાનું ભલું કરે. ભવનાથ દાદાના જે પણ આશીર્વાદ છે એનું કાયમી કલ્યાણ જે છે, કાયમી કલ્યાણ થાય. અને અમે તો એટલા વર્ષોથી અહીં ચૂંટાઈ કાયમ રોજ દર્શન કરવા આવી છીએ. અમારા ભાગમાં આવતી અહીંયા ભવનાથ દાદાના ચરણોમાં સેવા કરીએ છીએ. એટલે ખૂબ જ આનંદની અને હર્ષની લાગણી અમે તો સંતોષ આશીર્વાદ ભવનાથ દાદાના કાયમી લઈએ છીએ. લાખો કરોડો ભક્તો અહીંયા આવે છે. અમારા એના મોહન શ્રી ગુરુજી
ગીરી બાપુ પૂજનીય અને અમારા બધા સંતો ખૂબ જ ભવનાથ દાદાની ખૂબ કૃપા છે. શિવરાત્રિનો મેળો, પરકમાનો મેળો, અહીંયા 15-20 લાખ પબ્લિક હોય, કોઈ દી કાંઈ બનાવ, કોઈ જાતનો કોઈ બન્યો નથી. અને ખૂબ જ ભવનાથ દાદાની એવડી કૃપા છે, ભવનાથ દાદાના એટલા આશીર્વાદ છે, જે પણ અહીંયા આશીર્વાદ છે કાયમી કલ્યાણ થાય છે. અમે તો ખૂબ જ ભવનાથ દાદાના કાયમી, હું તો અહીંયા એમના દર્શન કરવા આવું છું રોજ, અને મારા ભાગ્ય સારા છે, અમે ભાગ્યશાળી છીએ, તમે દર્શન કરી એની એવી પૂજા કરી શકીએ છીએ. એટલે ખૂબ જ આનંદ છે, ખૂબ આનંદની લાગણી વસે છે. ભવનો નાથ, ભવનાથ, જય ભવનાથ. હું ડૉક્ટર સુશીલ કુમાર છું. સિવિલ હોસ્પિટલમાં મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે કાર્યરત છું અને 6 વર્ષથી હું જ્યારથી આ મેડિકલ કોલેજ જોઈન કર્યા ત્યારથી હું રેગ્યુલર આવું છું અને અહીંયા આવ્યા પછી મને બહુ શાંતિ મળે છે અને મારી મનોકામના પણ પૂर्ण થાય છે. मेरा नाम विजय मारुति वाघ है. हम महाराष्ट्र के थाना जिला से हैं. मैं मेरे दोस्तों के साथ में यहाँ आया हूँ. मेरे दोस्त जो है नंदू धनावड़े है, उदय है, वहाँ पे सब है जो हमेशा यहाँ पे आते हैं. उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि चलो एक बार दत्त गुरु के दर्शन लीजिए. तो दर्शन करने आया. अम्मा माता के तक जब तक मैं गया उधर तक, तो मुझे ऐसा लगा कि आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आगे जाऊँ कि नहीं. लेकिन एक मन की इच्छा अच्छी शक्ति बहुत प्रबल हो गई और मैं ऊपर तक दर्शन लिया. जैसे दर्शन ले तो ऐसा प्रसन्नता प्राप्त हुई कि पूछो मत. लेकिन यहाँ पे आके बहुत इतना अच्छा लगा कि पूछो. मुझे मेरे सब दोस्त भी कह रहे थे नहीं होगा, लेकिन हर एक अगर आदमी को ऐसा दर्शन लेना चाहिए तो हर बार किसी ने एक तो बार यहाँ पे आना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए. हमको यहाँ पे आके बहुत मन की शांति मिली है और हम बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुआ है. हमको लगता है कि अभी नेक्स्ट टाइम हम सब दोस्त जो है परिक्रमा के लिए एक बार ट्राई करेंगे और आके हमको यहाँ के साधु महंतों से मिलके वगैरह बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई. लेकिन हर एक आदमी को दत्त गुरु के दर्शन करने के लिए एक बार तो मन भाव से यहाँ पे आना चाहिए. ये मैं आपको 2 शब्द बोलूँगा. धन्यवाद. મારું નામ મિત્રેશભાઈ છે. હું અહીંયા લગભગ 8 અઠવાડિયાથી દર્શન કરવા આવું છું. મનને બહુ શાંતિ મળે છે અને આનંદ થાય છે. जय गिरनारी. हाँ, मैं गणेश परब मुंबई ठाणे कलवा से हर साल गिरनार यात्रा के लिए आता हूँ और परिक्रमा भी हम एक बार मैंने की है. और हमारे जो साथ में जो सब मित्र परिवार दोस्त हैं वो सब हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं. अब ये लॉकडाउन के बाद हमारा इस कल हम यहाँ पे आके या कल बहुत यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही सुंदर है और यहाँ का जो पर्वत के जो गिरनार का जो ये है काफ़ी सुंदर ऐसा नज़ारा हमेशा हमें यहाँ पे अद्भुत, यहाँ का जो नज़ारा हमेशा हमें अद्भुत और एकदम प्रेरणीय लगता है. और यहाँ जो भवनाथ का मंदिर है यहाँ पे भी महादेव का जो महाशिवरात्रि का जो प्रोग्राम होता है वो भी हम लोग आते हैं और बहुत ही यहाँ पे आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है. यहाँ पे आने के बाद मन में बहुत श्रद्धा रखे हुए हम यहाँ से हमेशा महाराष्ट्र से यहाँ पे आके आया करते हैं. और भी हमारे कई साथी है वो भी आते हैं यहाँ पे. तो मैं सभी को आपको ये करूँगा कि यहाँ पे जो भगवान का इतना बड़ी अपना श्रद्धालु हमेशा यहाँ पे आके. तो आज आप सभी दर्शन कर रहे हैं स्वयंभू भावनाथ महादेव का. और स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुआ हो, अर्थात जिसकी किसने स्थापना नहीं की हो, जो स्वयं प्रकट हुआ है उसे कहते हैं स्वयंभू. और महादेव, भावनाथ महादेव जो सबके भावों को जानने वाला है. महादेव के विषय में एक बड़ी सुंदर पौराणिक कथा आती है कि कैसे भावनाथ महादेव प्रकट हुए. एक बार हुआ क्या, ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को कहने लगे, प्रभु आप मनुष्यों के कल्याण के लिए मृत्युलोक में जाइए. तो भगवान शंकर जी मृत्युलोक में आए. उन्होंने मृत्युलोक में आकर देखा मैं कहाँ पर रहकर साधना करूं. तो वो इस गिरिनार क्षेत्र में आए और काफ़ी वर्षों तक इस गिरिनार क्षेत्र में रहकर भगवान शंकर ने साधना की, भगवान शंकर ने तप किया.
और तप करने के पश्चात जब कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ यहाँ पर नहीं है, तो माँ पार्वती बड़ी विचलित हो गई, हैरान हो गई कि मेरे भोलेनाथ कहाँ पर गए। तो भगवान नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि माँ, भगवान तो ब्रह्मा जी के कहने से मृत्युलोक में गए हुए हैं। तो मृत्युलोक में माँ पार्वती जी भगवान शंकर को ढूंढने के लिए आई। तो माँ पार्वती ने पूरा भारत भ्रमण किया, कहीं पर भगवान शंकर नहीं मिले। तो जब घूमते घूमते इस क्षेत्र में आई, सभी 33 करोड़ देवताओं को लेकर माँ पार्वती आई, तब भी भगवान शंकर का कोई पता नहीं लगा। तब भगवान शंकर ने अपने तन से उतारकर एक मृग छाला फेंकी और जहाँ पर मृग कुंड की स्थापना हुई है। आपको अभी दिखाते हैं, ये हमारे मृगी कुंड कहा जाता है। आपको दिखाते हैं, आप सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हैं। ये यहाँ पर एक मृगी कुंड है। इसके विषय में भी एक बड़ी सुंदर पौराणिक कथा आती है। ये मृगी कुंड है, आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर भगवान शंकर ने अपना मृग छाल फेंका था। इसके विषय में भी एक बड़ी सुंदर पौराणिक कथा आती है कि एक बार राजा भोज हुआ करते थे। तो राजा भोज एक बार भ्रमण करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में आए। उन्होंने एक विचित्र प्रकार का हिरण देखा। उस हिरण को देखकर हैरान थे राजा भोज कि ये हिरण कैसा है। उसका आधा शरीर तो हिरण का था और जो आधा शरीर था वो एक स्त्री का था। तो राजा भोज ने अनेक ब्राह्मणों, अनेक पंडितों को बुलाया कि इसके इस शरीर का क्या कारण है, ये ऐसा क्यों है। तो अनेक विद्वानों को बुलाया, अनेक पंडितों को बुलाया, अनेक साधुओं सन्यासियों को बुलाया, कोई भी उसका कारण नहीं बता पाया। तो राजा भोज ने एक कुरुक्षेत्र भूमि से एक सन्यासी हुए जिनका नाम था उदवारिता, उस ऋषि को बुलाया। उन्होंने बताया कि महाराज, जो ये हिरण है जिसका आधा शरीर स्त्री का है और जो मुख है वो हिरण का है, ये पूर्व जन्म में आप एक शेर थे। आप एक शेर थे और ये जो विचित्र हिरण है ये हिरण था। आप इसके शिकार के लिए दौड़े और जैसे ही दौड़े इसका आधा शरीर तो इस कुंड में गिर गया और आधा शरीर बाहर झाड़ियों में फंस गया। जो शरीर इस कुंड में गिरा उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में हुआ और जो बाहर इसका सर रह गया था वो वैसा का वैसा रहा। इस कारण से जो इस पवित्र कुंड में जो भाग शरीर का गिरा उसका मनुष्य के रूप में, स्त्री के रूप में अवतार हो गया पवित्र स्नान करने के कारण से, और जो बाहर रह गया वो हिरण रहा। तो राजा भोज ने क्या किया, अनेक ब्राह्मण पंडितों को बुलाकर जो उस हिरण का सर था उसे ढूंढवाया और उसको पुनः इस कुंड में स्नान करवाया और वो जो हिरण का बच्चा था, हिरणी थी, वो एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। राजा भोज ने उस कन्या से विवाह किया और इस पवित्र कुंड में शिवरात्रि के दिन हजारों साधु स्नान करते हैं और शिवरात्रि के दिन हजारों साधुओं का यहाँ पर मेला लगता है। ये ऐसी पौराणिक कथा भगवान महादेव के विषय में और इस मृगी कुंड के विषय में हमने पुराणों में सुनी है। हर वर्ष हजारों नहीं लाखों साधु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कार्तिक मास में पूरे गिरनार पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है जो भावनाथ महादेव से प्रारंभ होती है। और आप सभी को, सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, जब भी आपको समय लगे जूनागढ़ स्थित इस भावनाथ मंदिर में आकर आप अपने दर्शन कीजिए। सबके भावों को जानने वाले भावनाथ महादेव आप सबकी मनोकामना पूरी करें। ओम जय भाव।